Hello students, welcome to my channel English Nerves. Today we will learn how to identify a rhyme scheme in a poem. To identify a rhyme scheme, it is important to know what are rhyming words and you should know how to identify them. So let's first move on to rhyming words. Rhyming words are the words that have same or similar ending sounds. जब आप words को बोलेंगे और end में अगर वो same sound पे end होंगे तो उनको rhyming words कहते हैं. For example, Humpty Dumpty. They are ending with the sound T. So they are rhyming words. Rain, vain, tough, rough, allow, wow, ben, ten, coffee, toffee, table, cable, right? So they are very easy to identify. जैसे ही आप वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि वो राइमिंग है या नहीं है, वो सेम साउंड में एंड होना चाहिए. वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. Let's move on to rhyme scheme now. This is a poem by Robert Frost, Road Not Taken. It is in class 9th NCERT book Beehive. Let's read it and let's find out the rhyme scheme of this poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. जब भी आप किसी पोएम की राइम स्कीम ढूंढना चाहते हैं तो आपको लाइन के लास्ट वर्ड को देखना है. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, इसमें लास्ट वर्ड क्या है? वुड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, सो बोथ इज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस लाइन. ऐसे ही बाकी के वर्ड्स भी देख लेंगे. स्टूड, कुड, अंडरग्रोथ. You can either underline these last words, right? It will be easier for you to find out the rhyme scheme then. तो आप इसको underline कर सकते हैं last word को. So would, both, stood, could, undergrowth. अब फर्स्ट वर्ड पे आते हैं. फर्स्ट वर्ड क्या है? would. और इसका नेक्स्ट क्या है? both. Are they rhyming? Would, both. Would is ending with ud sound and both with ut. So obviously they are not rhyming क्योंकि ये same sound के साथ end नहीं हो रहे हैं. तो जो first word है, जो first line है, उसका जो first word है would, उसको आप A बोलेंगे. A आप उसको अल्फाबेट नाम दे देंगे, या हम राइम स्कीम मार्क कर रहे हैं. राइम स्कीम मार्क करने के लिए आप इसको A को कह देंगे, राइट? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जो है बोथ. अब ऑब्वियसली ये इससे राइम नहीं कर रहा है तो इसको नेक्स्ट अल्फाबेट दे देंगे आप बी. ओके, नेक्स्ट आप देखें स्टूड. अब आपको देखना है कि स्टूड वुड या बोथ के साथ राइम कर रहा है या नहीं. सो स्टूड इज राइमिंग विद वुड और विद बोथ. स्टूड, वुड. When you will pronounce the words, you will easily identify it. Stood, would, stood, both. So stood is rhyming with would, not with both. So would, you have marked would A. The first line is A. And now the third line is also rhyming with the first one. So that will also become A. Right? Next line is could. Could is rhyming with would, both, stood. किसके साथ ये rhyme कर रहा है? Could rhyme कर रहा है would और stood के साथ. Would और stood को हमने A बोला है तो हम could को भी A नाम दे देंगे, right? So A, B, A, A. This is how we have marked the rhyme scheme so far. Let's move on to the last line. Last line is undergrowth. Now growth is rhyming with both or with would, stood, could. Growth, both. Both से rhyme कर रहा है. बोथ को हमने बी दिया है तो हम ग्रोथ को भी बी दे देंगे. ओके, तो वुड को आपने ए बोला था इसलिए आप बोथ को बी कहेंगे क्योंकि वो राइम नहीं कर रहा है वुड से. नेक्स्ट है स्टूड, कुड, ए बोलेंगे और अंडरग्रोथ को बी. सो ए बी विल बी द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम. फर्स्ट लाइन इज राइमिंग विद द थर्ड एंड फोर्थ and second rhymes with the last fifth line, and the rhyme scheme becomes A, B, A, B. Let's underline the last words of the line. Crow, me, snow, tree, heart, mood, part, rude.
सो क्रो को आप क्या मार्क करेंगे, ए मार्क करेंगे, राइट? जो भी फर्स्ट लाइन होगी उसको आप हमेशा ए मार्क करेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज मी. इज मी राइमिंग विद क्रो? क्रो मी, ऑब्वियसली नो, इट्स नॉट राइमिंग. सो नेक्स्ट हम लिख देंगे उसको बी. नाउ नेक्स्ट इज स्नो. इज स्नो राइमिंग विद क्रो और विद मी? क्रो, स्नो, स्नो, मी. स्नो, क्रो. स्नो, क्रो राइम हो रहा है, सेम साउंड के साथ एंड हो रहा है. क्रो को आपने ए मार्क करा है तो आप स्नो को भी ए मार्क कर देंगे. नेक्स्ट इज ट्री. ट्री इज राइमिंग विद मी. मी को आपने बी मार्क करा है तो आप ट्री को भी बी मार्क कर देंगे. ए बी ए बी, वेरी सिंपल राइम स्कीम, वेरी इजी. क्रो, स्नो, मी, ट्री, राइट? नेक्स्ट इज हार्ट. अब हार्ट आपने देखा है कि ऊपर जो आपने वर्ड्स अंडरलाइन करे हैं, हार्ट किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है. हार्ट, क्रो, हार्ट, मी, दे आर नॉट राइमिंग. सो हार्ट को आप सी नेक्स्ट अल्फाबेट दे देंगे. ए बी हम अभी तक मार्क कर चुके हैं तो नेक्स्ट को हम सी मार्क कर देंगे. मूड किसी के साथ ऊपर नहीं राइम कर रहा है. मूड, क्रो, मूड, मी, मूड, हार्ट, नॉट राइमिंग, तो मूड को आप डी मार्क कर देंगे. नेक्स्ट इज पार्ट. पार्ट, मूड, पार्ट, हार्ट. हार्ट के साथ राइम कर रहा है पार्ट तो आप इसको सी मार्क कर देंगे. नेक्स्ट इज रूट. रूट इज राइमिंग विद मूड. मूड को आपने डी मार्क करा है तो आप रूट को डी मार्क करेंगे. ऑल राइट, आई होप आपको अब तक समझ आ गया है कि इट्स ऑल अबाउट द राइमिंग वर्ड्स. और जो आपने राइमिंग वर्ड्स आपको आ जाएंगे तो आप राइम स्कीम भी बहुत इजीली निकाल लेंगे. सो द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी सी डी सी डी. सो in the first stanza, first line rhymes with the third line, and the next stanza also first line rhymes with the third line, and the second is rhyming with the fourth line. So the rhyme scheme becomes A B C D C D. Okay. Let's move on to the next poem, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Let's find out the rhyme scheme of this poem now. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on paths of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. Let's first underline stripes, cage, quiet, rage, shadow, grass, hole, pass. पहले फर्स्ट ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन को आप ए मार्क कर देंगे. स्ट्राइप्स को आपने ए मार्क कर दिया है. नेक्स्ट है केज. केज, स्ट्राइप्स, नॉट राइमिंग, सो केज को आप बी मार्क कर देंगे. क्वाइट, स्ट्राइप्स, क्वाइट, केज, नॉट राइमिंग, इसको आप नेक्स्ट अल्फाबेट सी मार्क कर देंगे. रेज, रेज, स्ट्राइप्स, रेज, केज, रेज, केज, रेज इज राइमिंग विद केज. केज को आपने बी मार्क करा है, सो रेज को भी आप बी मार्क कर देंगे. सो द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा बिकम्स ए बी सी बी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. शैडो. शैडो, स्ट्राइप्स, शैडो, केज, शैडो, क्वाइट, किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है, सो यू विल मार्क इट डी. नेक्स्ट इज ग्रास. ग्रास, स्ट्राइप्स, ग्रास, केज, ग्रास, क्वाइट, ग्रास, shadow. Grass is not rhyming with any of the words that we have marked above, so grass will be marked E. Next is hole. Hole, stripes, hole, cage, quiet, shadow, grass, किसी के साथ rhyme नहीं कर रहा, so hole को आप next alphabet F mark कर देंगे. Pass is rhyming with shadow, grass, hole. Pass is rhyming with grass. Pass, grass. ग्रास को आपने ई मार्क करा है तो पास को भी आप ई मार्क कर देंगे. सो द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम विल बिकम ए बी सी बी डी ई एफ ई. इन दिस द फर्स्ट लाइन is not rhyming with any other line, right? In the first stanza you will see that stripes is not rhyming with any other line. Second is rhyming with the fourth one. Second, cage, rage, second line is rhyming with the fourth line. And the same pattern is followed in the next stanza also. Here you have A, B, C, B, then you have D, E, F, E. First line किसी के साथ rhyme नहीं कर रही है, second और fourth rhyme कर रही है, और third भी rhyme नहीं कर रही किसी के साथ. So the pattern, the rhyme scheme of this poem will become A, B, C, B. Thank you for watching it. Thank you.